Good morning, everyone. My name is Sarabjit Kaur, Assistant Professor CBSA from Commerce Department. Today, my topic is social culture environment for business survival. See, you all know that in today's era, we need to have a knowledge of some aspects, some factors which may affect our business. Now, what is business? Business is to occupy someone, to self-electant. So, in this era, we need to know what are the basic factors which may affect for our business. Learning objective of my topic is to understand environment involving society and culture. Now what is environment? Environment is surrounding, जिसमें हम सब रह रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास जो होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं. तो उन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जॉब मिले. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी को जॉब मिले या कुछ भी इस तरह से आप कोई काम करो, किसी ना किसी को काम करना है. One need to be an entrepreneur. For that you need to understand what are the factors which may affect you. To know the need to study this particular environment, to know about the factors which may affect the business, to learn about the culture and societal aspects of a particular country in order to have successful business. See, we are living in India, so we have to know what are the factors which may affect in India. India is a land of various religions. There are a lot of people living over here from different aspects, from different backgrounds, from different countries, also living over here, because there are immigrants, people who are living over here. So we need to know all. After this lecture, the learning outcomes will be students will able to understand how to operate the business in a particular country by following the factors which may affect the business, and also how to be successful in a given period. So very first thing is, what is social environment? Social environment composed from society. Now what is society? Society एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब रह रहे हैं. We all people together make a society. So social environment business means factors which affect the business socially. Because हम society के साथ रहते हैं, हम society को डील करते हैं, हम उनसे ही लेते हैं और हमें at the last उनको ही पे बैक करना है. Because society is a resource from which we take and we have to give back to them. और society में जो customers हैं वो किंग पिन है मार्केट के. वो ऐसा एक पॉइंट है जो आपके बिजनेस को आने वाले टाइम में गिरा भी सकता है और आने वाले टाइम पे उठा भी सकता है. सो इट इंक्लूड योर फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, योर रिलीजन. बिकॉज इन इंडिया रिलीजियस बिलीव्स आर utmost important. It include the culture also. Culture means the way of living life, how you live. पुराने टाइम से लेके अब के टाइम में कितना डिफरेंस आया है वो सब हमें देखना पड़ता है. If you are living in a rural area, you have to follow their beliefs, their culture, their tradition. If you are living in a city, you have to follow their tradition. आज के टाइम में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं वो बहुत एडवांस हैं. हालांकि देयर इज अ जनरेशन गैप, पेरेंट्स की सोच में और बच्चों की सोच में फ़र्क है. तो इफ़ यू आर टारगेटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आपको उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने ज़रूरी हैं. अगर आप फैमिली को देखते हो तो आपको उनके हिसाब से बनाने की जरूरत. तो कल्चर इज़ अ ट्रेडिशन, इज़ अ बिलीव दैट वन फॉलो इन हिज और हर लाइफ. So culture factors like buying and consumption habit of people, custom, tradition, taste, preferences, languages and the factors which affect the strategy of business. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, कोई चीज़ इनोवेट करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ लेके आना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं तो आने वाले टाइम पे आपकी मार्केट जो है वो गिर जाएगी. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ओवर हियर. ठीक है, एंड्रॉयड पहले जब हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, हमारे पास बटन्स वाले मोबाइल थे. मोबाइल्स यूज़ करते करते दैट कम्स a new innovation from buttons, from quadri keypad, then quadri keypad to your smartphones. There's a company Nokia. If you remember, Nokia का क्या साथ क्या हुआ? They switched to Microsoft, whereas others company switched to Android system. Now what happened with that company? उन्होंने जब माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को चूज़ करा, दैट वाज नॉट अवेयर अमंग द स्टूडेंट्स और अमंग द जनरेशन, अमंग द पीपल. लेकिन वहाँ पे उस कंपनी ने
एंड्रॉयड सिस्टम की बजाय जब माइक्रोसॉफ्ट को चूज़ करा तो उस कंपनी की ज़्यादा सेल्स नहीं हुई, एंड एट लास्ट अगर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो नोकिया ऐसी कंपनी इसका नाम भी नहीं है। बाकी सारे इतने भी अगर छोटी मोटी कंपनीज देखो उनके भी चल रहे हैं, MI है, ठीक है, ओप्पो है, वीवो है, दे ऑल आर वर्किंग इन अ मार्केट। बट नोकिया ऐसी कंपनी है जिसने एंड में आके एंड्रॉयड सिस्टम को चूज़ करा, लेकिन उनकी मार्केट एट द लास्ट डिमिनिश हो चुकी थी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स while doing your business in a particular society, in a particular culture. Now what is culture over here? Culture environment means way of living of life. What kind of standard you are having, what kind of lifestyle you are having. Like if you want to have a good lifestyle, then a particular business person has to seek all these factors in order to fulfill his or her requirement. So over here there's a lot of factors which may affect the basic values, behaviors, preferences of the society. Like in Hindus, they are जो particularly Hindu family के होते हैं like शर्मास वगैरह, वो लोग नॉन वेजिटेरियन या अल्कोहल को नहीं लेते हैं। तो अगर आप उस सेगमेंट को देख रहे हो, ठीक है, आपको उनके कल्चर के हिसाब से, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको देने होंगे। तो अगर आप लोगों को उनके सेगमेंट को टारगेट करना है, यू कीप इन माइंड दैट व्हाट दे आर, व्हाट इज़ देयर लिविंग स्टाइल, व्हाट इज़ देयर लाइफ स्टाइल। तो उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा। सो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट इज़ ऑल ऑफ सेट ऑफ बिलीव्स, ऑफ योर ट्रेडिशंस, of your values, morals, way of living life, what society provides you. Sometimes it's happened that in today's lifestyle we see that many students or many children's उनके views society से मिलते नहीं हैं, लेकिन they are the part of society। अब वो हर एक चीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ना ज़रूरी है कि अगर आप चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना कि सोसाइटी के साथ उनके क्या बिलीव्स हैं। तो दोनों को मद्देनज़र रख के ही आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आ सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। नाउ व्हाई वी नीड टू स्टडी द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, क्यों ज़रूरत है हमें पढ़ने की? सबसे पहली बात है कि मैंने अपना बिज़नेस शुरू करना है। अब मुझे जब बिज़नेस शुरू करना है तो मैं एक सोसाइटी में रहकर करूँगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे उस ईरा में रहना है, मुझे इस सोसाइटी में रहना है। सो आई नीड टू स्टडी दिस, बिकॉज़ ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो मेरे आने वाले टाइम में बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता है और आगे कम भी कर सकता है। बिकॉज वी नीड टू हैव टू कॉप अप विद द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी एक साथ नहीं रहती है, एक स्थिर में नहीं रहती है। इट इज़ ऑलवेज डायनेमिक, इट विज़ ऑलवेज चेंज। जैसे जैसे टाइम बीतता है वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। पहले के टाइम पे अगर आप कपड़ों को देख लोगे, वी सी कि क्लोथ्स में, वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स में बहुत फ़र्क आया है, लोगों के पहरावे में बहुत फ़र्क है, लोगों के खाने पीने में बहुत फ़र्क है। पुराने टाइम पे पीपल यूज़ टू ईट सिंपल फूड लाइक दाल बाटी चूरमा, दिस इज़ ऑल दे यूज़ टू ईट एट होम। बट नाउ एवरीवन ट्राइज कि वो अलग अलग कुजीन्स को ट्राई करें। अब वो कुजीन्स के हिसाब से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, तो हर एक बिज़नेस जो है उस हिसाब से इफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। बिकॉज आप इंडिया में रहते हैं, या चलो इंडिया के लिए भी छोड़िए, अगर आप बाहर के देश में भी रह रहे हैं तो बाहर के देशों में भी एक पर्टिकुलर आपको रिलीजन कभी नहीं मिलेगा, या पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन को कभी नहीं मिलेगा। बिकॉज हर पर्सन की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है जीने का। तो आपको उनके जीने के तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक सिंपली, लेट्स सपोज कि मेरी अगर रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट में मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं चूज़ कर सकती। मुझे चाहिए कि मेरे रेस्टोरेंट में हर कोई आए, बड़े से बड़ा भी, बुजुर्ग भी आए, छोटे से छोटा भी आए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट में हर एक वो चीज़ अवेलेबल हो जो पर्टिकुलर टारगेट्स को अचीव कर सके, जो सेगमेंट को मैं अचीव कर सकूँ। देन इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी में अब आप देखिए कि ऐसा एक टाइम अब आता है कि जब सीज़न के टाइम पे बिज़नेस का डाउनफॉल भी होता है और अपवर्ड भी होता है। लाइक इन फेस्टिवल सीजन्स, पूरे साल चाहे बिक्री ना हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन दिवाली का ऐसा सीज़न होता है, या करवा चौथ का ऐसा सीज़न, दशहरा का ऐसा सीज़न होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो मैटर करती है दैट इज़ लिटरेसी रेट,
पुराने ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम अगर हम देखते हैं लोग पढ़े लिखे हैं, दे नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगते हैं कि कोई इनोवेशन मिले, हमें कोई नई चीज़ मिले, तो उन चीज़ों को भी हमें देखना ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हमारे इंडिया में लोगों के माइंड में। सबसे पहली बात आती है ब्रांड को लेके, तो ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, तो आपका ब्रांड जो है वो कितना है वो चीज़ मैटर करती है। देन यूज़फुल एंड डिमांड फॉरकास्टिंग, आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी की रहेगी, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ अब रिफ्रेशमेंट्स का, एनर्जी ड्रिंक्स का, ठीक है, सर्दियों में एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, या आप कह लो कि जो हमारे ये गर्मियों में हम लोग रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं वो सर्दियों में नहीं यूज़ होता है, लेकिन गर्मियों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आप किस तरीके से किस मार्केट को सेगमेंट करते हो। बहुत बार होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही रिफ्रेशमेंट्स नहीं यूज़ करते, लेकिन वो सर्दियों में भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हेल्प कर सकती हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। देन टू फेस कंपटीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो हर एक सेगमेंट को, कैसे वो मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो पोजीशन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो बहुत ज़रूरी है देखना। अगर आज आप अपनी सोसाइटी के साथ कोप अप करोगे, आज आप उनको बेस्ट प्रोडक्ट दोगे, आज आप उनकी नीड्स को देखोगे, तभी आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको हरा पाओगे। देन टू अकोमोडेट प्राइस सेंसिटिव मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में अगर आप देखेंगे, इट इज़ अ पॉपुलेशन राइट नाउ एज पर द डाटा ऑफ 2021, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 139 करोड़। एक 139 करोड़ की अब जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को कैटर भी करना है। आई नो आप पूरा इंडिया कवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एरिया में भी अगर 1 करोड़ की जनता भी होगी तो आपको उसकी जो प्राइस है, कितना वो खर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से भी देखना है, ठीक है। अगर मैं एप्पल की बात करूँ, एप्पल का जो रेट है, एप्पल कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा हाई प्राइस पे रहते हैं, लेकिन वो हर किसी की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। सेम वे अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूँ मोबाइल फ़ोन्स में, तो MI एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे की हर एक बेसिक जो लोग हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनकी नीड्स को पूरा कर रहा है। वो चलो फीचर्स का अगर मैं बात करूँ तो इतने हाई फाई फीचर्स नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो हर कोई चाहता है अपने मोबाइल में, वो आपको मिल जाएंगे। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं किसी भी एरिया में, तो आपको वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि प्राइस जो एक बंदा आपको पे कर सके। अगर कोई सामान आपका 1 लाख का है तो सीधी सी बात है, मिडल मैन पर्सन कैन नॉट परचेज इट, वो नहीं परचेज कर पाएगा। तो सामान या कोई प्रोडक्ट कह लो या सर्विस कह लो, आप उस हिसाब से लेके आइए ताकि जो मिडल मैन है वो उसको अफोर्ड कर सके। बिकॉज इंडिया में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द हाइएस्ट और द लोएस्ट। लास्ट ओवर हियर इज डिज़ाइनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ यू कैन कोप अप, ठीक है। किस तरीके से अगर कोई शिफ्ट आ जाता है, कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा इन्वायरमेंट है जो इसके साथ भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर कोई चेंज आ जाए, कोई बाहर का ट्रेडिशन फॉलो हो रहा हो या लोग उसको बदलना चाहते हों, तो एटलीस्ट आप इस फैक्टर को मद्देनज़र रख के अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज अप कर सकते हैं। Now over here, next part is factors which affect the societal and cultural environment of people. Attitude क्या है? आपका वे, आपका नज़रिया, किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ठीक है। अच्छा है, बुरा है, ठीक है, यू आर लिविंग, किस तरह से आप जी रहे हो, तो वो सारा इसमें इंक्लूड है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, योर एज, किस एज को आप चूज़ कर रहे हो, बच्चों का चूज़ कर रहे हो, एडल्ट्स को चूज़ कर रहे हो, ठीक है, एडोलेसेंट्स को चूज़ कर रहे हो, यंगस्टर्स को चूज़ कर रहे हो, तो वो उसके हिसाब से होता है। रिलीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो रिलीजन आस्पेक्ट्स को देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसमें हिंदुज़म भी आता है, सिखिज़म भी आता है, इस्लामिक भी आता है, जैनिज़म भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, बुद्धिज़म्स भी आते हैं। तो ये सारे रिलीजन हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक स्टेट में आपको एक ही रिलीजन वाले लोग मिलेंगे, नो। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ पंजाबी नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे बहुत तरह के लोग मिलेंगे। तो उस हिसाब से हमें देखना बहुत ज़रूरी है अपने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आज के टाइम में आपको पता है कि लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, वो इतने परफेक्ट हैं अपने टेस्ट को लेके, इतने चूज़ी अपने टेस्ट को लेके, प्रेफरेंसेस को लेके, कि वो स्विच भी नहीं करना चाहते किसी और चीज़ को।
देन एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देखोगे, इंस्टीट्यूशन में बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, दैट ब्रिंग अवेयरनेस। पुराने के टाइम पे हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं था, ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स के बारे में नहीं पता था। अगर मैं स्लम एरियाज़ में देखूंगी तो उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन अगर वही बच्चों को अगर एजुकेशन दी जाए तो उनको पता होगा कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ओवर हियर। लेट्स सपोज एक बच्चा है जिसको चाय पीने की बहुत आदत है। अब वो स्कूल में जाता है, स्कूल में अगर उसकी टीचर उसको कहती है कि चाय जो है, द टी कंजप्शन ऑफ टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो उसको वहाँ से अवेयरनेस मिली और वहाँ पे जाके उसने जब ये देखा कि हाँ टीचर उसको समझा रहे हैं कि चाय पीने से उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पे उसने चाय पीना बंद कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या है, अगर वो बच्चा रोज़ के 2 कप भी ले रहा है और वो बंद कर देगा तो साफ सी बात है पर्टिकुलर ब्रांड की जो टी है उसकी सेल अपने आप ही डाउन हो जाएगी। फैमिली तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलूँगी, बिकॉज बचपन से लेके हमारे बुढ़ापे तक हम एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बिलीफ के साथ जुड़े हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं लेने से, नहीं दिलवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग माइंड में लेके चलते हैं कि नहीं एडवांस फैक्टर्स हैं, एडवांस दुनिया है, ठीक है, बहुत लोग एडवांस में जी रहे हैं, लेकिन उस एडवांसमेंट में हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या फैमिली अलाउ करेगी उस चीज़ के लिए, क्या फैमिली वो प्रोडक्ट खरीदने देगी हमें, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इनकम स्टेटस एंड लाइफस्टाइल, इनकम में कितना पैसा लोग बंदे कमा रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। इफ़ पर्सन इज़ जस्ट अर्निंग 30,000 और 35,000 तो साफ सी बात है उसकी जो इनकम है अलाउ करेगी खर्च करने के लिए आफ्टर ऑल द एक्सपेंस वो भी 10 to 15,000, ठीक है। तो इनकम लेवल एंड लाइफस्टाइल हेल्प इसमें करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर्स कोई भी लेके आ रहे हैं तो कितना को एक बंदे की हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। इसमें अब अगर मैं 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीजन, फैमिली एंड योर एजुकेशन। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड जो है जो प्रोडक्ट की उसको ऊपर से नीचे भी कर देंगे और नीचे से ऊपर भी कर देंगे। ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़िंदगी में जो आपको बहुत ज़रूरी है देखने, क्योंकि इन फैक्टर्स को अगर आप इग्नोर करोगे तो सर्वाइवल विल बी ज़ीरो। सबसे पहले आता है फैमिली। एक बच्चा जो है वो बर्थ लेता है, ठीक है, और बर्थ से लेके डेथ तक वो अपने आसपास के जो लोग हैं, मदर, फादर, दादा, दादी, उनके साथ रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स उसके लिए डिनाई करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल इसमें लेती हूँ। सपोज करो अगर आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, आप चाहते हो कि डबल डोर फ्रिज आए, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं कहेंगे, उसके लिए वो वायबल नहीं है, हो सकता है उनकी इनकम अलाउ ना करे, या वो ये कहें कि हमारी फैमिली छोटी है, 4 मेंबर फैमिली है, तो हमें डबल डोर लेके क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह से वॉशिंग मशीन्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं प्रेफर नहीं करती हैं, ठीक है, कि उनको फुली ऑटोमेटिक मिले, वो सेमी ऑटोमेटिक में खुश हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाइंग डिसीजन एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स को इफेक्ट करती हैं। दूसरा बात, कल्चर जो है आज के टाइम पे वो इफेक्ट करता है। इंडिया इतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि हम बाहर के जो कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। देन बिजनेस में मस्ट एनालाइज वंस फैमिली नीड। अगर एक बिजनेसमैन ये सोच कर करे कि नहीं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देगा, वैसे तो क्वालिटी मैटर करती है लेकिन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर ऐसा है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो मैनी ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो खर्चा करते हैं। फैमिली के फंक्शंस, इंडिया में शोशाबाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग जो हैं एक दूसरे को देख के सोशली बहुत खर्चा करते हैं, स्पेशली मैरिजेस पे। तो एक बिजनेसमैन जो डील कर रहा है मैरिजल गुड्स के लिए, लहंगे कह लो, ठीक है, आप लहंगा को ले सकते हो, फर्नीचर्स को ले सकते हो, केटरिंग को ले सकते हो, ठीक है, डेकोरेशंस को ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। और उनके हिसाब से आप ये देखिए कि आज के टाइम पे इंडियंस ऐसे ही हैं जो शादियों पे हद से ज़्यादा खर्चा कर लेंगे। वैसे कभी किसी चीज़ पे खर्चा नहीं करेंगे, बट शादी ब्याह ऐसा चीज़ होती है, या कह लो कुछ अपने उनके पर्सनल फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन पे उनका खर्चा हद से ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट कमिंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। एक पढ़ा लिखा इंसान इजीली डिसीजन ले सकता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। वो एनालाइज कर लेता है प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, विच सर्विसेज बेटर, ठीक है। जैसे अब इंश्योरेंस को लेकर कर लो, ठीक है, इंश्योरेंस का हर किसी को नॉलेज नहीं है, लेकिन जिसको उसके बारे में नॉलेज है, जिसने उसके बारे में पढ़ा है, वो ईजिली अपने लिए
इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी करवानी है उसकी अवेयरनेस भी हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो इफेक्ट हो जाता है। देन रिलीजन जो है वो बहुत इफेक्ट करता है बिजनेस को सोशली। रिलीजन में वैसे तो हम लोग कहते हैं गॉड इज़ वन, नो डाउट गॉड इज़ वन, आई ऑलवेज से गॉड इज़ वन, बट वी फॉलो सम पाथ टू रीच दैट वन स्पिरिचुअल पावर, बिकॉज इट्स अ पावर जिसके लिए हम एक धर्म को चूज़ करते हैं, एक रिलीजन को चूज़ करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक रिलीजन के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, कोई रिलीजन कुछ कहता है तो कोई रिलीजन कुछ कहता है। तो और हमें, अगर हम एक सोसाइटी में हैं और उस सोसाइटी में हर एक तरह के लोग आएंगे, तो हमें हर एक रिलीजन के एस्पेक्ट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ एक रिलीजन के बिलीफ्स को अगर हम ठुकरा कर दूसरे को फॉलो करें, तो उस तरह से भी नहीं हो सकता। और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये इफ़ेक्ट करती हैं। लाइक अब जैनिज़्म का है, ठीक है, जैनिज़्म क्या करेंगे, कभी भी लेदर प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज लेदर इज़ मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन। और जैनिज़्म आप कभी देखना, उनके मुंह भी ढके होते हैं, वो पैरों के नीचे जूती भी नहीं पहनते हैं। वो क्यों नहीं पहनते? क्योंकि उनको बिलीव है कि कोई भी कीटाणु या कोई भी जर्म हमसे ना मर जाए, तो वो लेदर प्रोडक्ट्स को नहीं बाय करेंगे। तो इट मीन्स दैट लेदर की जो मार्केट है वो जैनिज़्म को नहीं प्रेफर। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को अगर टारगेट करेंगे तो आपका जो मार्केट है वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। देन ऑल्सो दे हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे अब मुस्लिम्स में है, मुस्लिम्स में जो शराब है, अल्कोहलिज्म कहते हैं, अल्कोहल जो है वो बैंड, वो नहीं पीते हैं, उसको वो हलाल मानते हैं। तो अगर रेस्टोरेंट में है, ठीक है, या अगर आप किसी एयरलाइंस में हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। सो बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द टारगेट ऑडियंस आफ्टर लिसनिंग देयर रिलीजियस थॉट्स, ही शुड प्रोड्यूस द गुड्स। अब रिलीजन में मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं कि किस हिसाब से जो रिलीजन है वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। एक अमेरिकन फास्ट फूड चेन है, सपोज करो अगर वो इंडिया में आती है, इंडिया में आने से पहले जो अमेरिकन फास्ट फूड थी, जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशंस थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने उसको अपोज करा। क्यों? अगर आप बाहर के देश को देखेंगे, वहाँ पे बीफ खाया जाता है। बीफ क्या होता है? काऊ का जो फ्लैश होती है उसको हम बीफ बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में वो बैन है। हम गऊ को, जो काऊ होती है, उसको हम माता मानते हैं, वी ओ एज गॉडेस ऑफ टू द काऊ, तो हम उनको नहीं मार सकते। तो अमेरिकन की जो फूड चेन थी वो हमारे इंडिया में आने से पहले फेल हो गई थी। सेम वे क्रिश्चियंस जो हैं वो नॉन वेज नहीं लेते हैं, दैट इज़ 50 डेज प्रीसीडिंग द ईस्टर। सेम वे जितने भी हिंदूज होंगे वो राहु काल में परचेज नहीं करते। अभी श्राद्ध चलते हैं, जैसे सपोज करो, लेट्स सपोज कि अगर श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी परचेज करना नहीं चाहेगा। तो साफ सी बात है, आपकी जो मार्केट है उतना टाइम पे नीचे गिर जाएगी। लेकिन नवरात्रा आते ही आपकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि किस पीरियड में आपकी जो सेल है वो नीचे गिर जाएगी, किस पीरियड में आपकी ऊपर पड़ जाएगी। सेम वे जैसे अब ग्रहण वगैरह लगते हैं, तो ग्रहण वगैरह ये जो चीज़ें ये रीजन में बहुत मैटर करती हैं। तो पीपल डू नॉट बाय द थिंग्स इन दैट एरिया, इन दैट पीरियड। नेक्स्ट अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ इस्लामिक बॉडी का, यहाँ पे इस्लाम में वो कहते हैं कि बैंक्स में वो इंटरेस्ट कभी चार्ज नहीं करेंगे। इस्लाम में ऐसा उन्होंने बना रखा है कि जितने भी इस्लामिक बैंक्स होंगे, दे डू नॉट पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर, नो दे चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोर। ना तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, ना वो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। सेम वे मैरिज, naming ceremony of child, festivals vary significantly between the religions. These have implications for many type of businesses, textile, jewelry, catering, consumer durables. दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुस्लिम्स उस फेस्टिवल को नहीं मनाते, तो वहाँ पे इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन दिवाली के टाइम पे हम ये देखते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं उसको मनाते हैं, तो किस चीज़ की सेल जो है वो इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, लोग कपड़े खरीदते हैं उसकी, उसके बाद जितने भी आपका फर्नीचर वगैरह है उसकी की जाती है, ज्वेलरी की जाती है, तो इन सब की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। देन कमिंग नेक्स्ट इज लैंग्वेज। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है इंडिया में, वैसे तो हिंदी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हिंदी इज़ अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, बट देयर आर अदर लैंग्वेजेस आल्सो विच मे इफ़ेक्ट योर बिजनेस, ठीक है। कुछ लोग किसी वर्ड को अलग मतलब से भी समझ सकते हैं और कुछ लोग किसी वर्ड को किसी और मतलब से समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, फोर्ड, थर्ड वर्ड ट्रक ब्रांड नेम फेरा।
फिरा को फोर्ड जो है, चलो अगर आपने फोर्ड का ब्रांड सुना होगा, ट्रक्स एंड कार्स में काफ़ी फेमस ये है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, जो उनका नेम था फेरा, ठीक है, इसको उन्होंने स्पेनिश की लैंग्वेज के हिसाब से इट मीन्स अगली ओल्ड वुमेन। तो ये जो ब्रांड था, जब उन्होंने अपने ट्रक का नाम फेरा रखा तो ये स्पेनिश लैंग्वेज के हिसाब से उस एरिया में ये चला ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं। मुस्लिम्स में जो लिखावट है वो राइट से लेफ़्ट को जाती है। तो एक कंपनी थी जिन्होंने अपना बैनर बनाया, उन्होंने क्या करा कि गंदे कपड़े यहाँ रख दिए, देन या पाउडर, देन या क्लीन क्लोथ्स। अब अरेबिक लैंग्वेज में अगर हम उसको पढ़ें तो राइट टू लेफ़्ट होता है और हमारे में वो राइट लेफ़्ट टू राइट जाता है। अब जो पढ़ने वाला अरेबिक बंदा है वो क्या पढ़ेगा कि धोए हुए कपड़े फिर से धोने के बाद, या क्लीन कपड़े कह लो, धोने के बाद गंदे हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर जाती हैं। देन कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर किस तरीके से हिसाब से आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है, कितना वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। बिकॉज अगर हम देखें नेस्कैफ़े और ब्रू मार्केट, नेस्कैफ़े एक प्रोडक्ट है कॉफ़ी का, ब्रू भी प्रोडक्ट है कॉफ़ी का। नेस्कैफ़े प्रोडक्ट जो है वो बम्बई में इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन ब्रू जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो वो डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को किस हिसाब से देख रहा है। सो इवन व्हेन अ प्रोडक्ट सर्व सेम पर्पस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में डिफरेंट बिटवीन द मार्केट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने टायर्स का एग्जांपल लिया है, गुड टायर्स फॉर एग्जांपल, स्ट्रेस टायर सेफली इन ब्रिटेन, ड्यूरेबिलिटी एंड माइलेज इन यूएस, अगाइल परफॉर्मेंस इन जर्मनी। मतलब एक ही कंपनी के टायर्स जो हैं, ठीक है, अलग अलग देशों में क्या मीनिंग दे रहे हैं वो भी यहाँ पे मैटर करता है। सो यहाँ पे हमको हर एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी पैकिंग को, लेबलिंग को, क्या वो मोटिव सोसाइटी का दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या वो मोटिव जो है सोसाइटी पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हर एक चीज़ जो है वो मैटर करती है। नेक्स्ट, अदर एग्जांपल्स एंड चेंजेस विच इज़ डन बाय द कंपनीज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पेप्सी का। पेप्सी का जो एक एग्जांपल है, दिस इज़, ये जब आया था, ठीक है, तो इनका स्लोगन था कम अलाइव। चाइना में इसको बोलते हैं कमिंग आउट ऑफ ग्रेव, तो उनको ये स्लोगन चेंज करना पड़ा। अब अगर आप देखोगे पेप्सी का स्लोगन क्या है, हर घूंट में स्वैग है। Now they have changed the slogan from come alive to हर घूंट में स्वैग है। सेम में टाटा टियागो जो है, टाटा टियागो ने जब अपनी कार को लॉन्च किया था तो उन्हें जिका के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन फ्रांस में ये नहीं चल पाई बिकॉज जिका मीन्स डेथ, जिका का मतलब होता है डेथ। तो उन्होंने इसको चेंज करके टियागो करा। सेम वे पैप्सोडेंट अगर इंडिया में देखें, हम इंडियंस को होता कि नहीं वाइट टीथ होने चाहिए, येलो नहीं होने चाहिए, येलो टीथ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में एंड अमेरिका में इस चीज़ को अपोज किया गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि हमारे येलो एंड ब्लैक टीथ जो है वो प्रेस्टीज का होता है, तो वहाँ पे एक कंपनी जो है वो नहीं चल पाई। क्वांटस एयरलाइंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एयरलाइंस है। जब क्वांटस एयरलाइंस ने अरेबियंस के साथ अपना टाई अप करा था, तो उनको अपनी जो वहाँ पे सर्विंग्स हैं उनको चेंज करना पड़ा, बिकॉज आपको पता है अरेबियंस में जो मीट वगैरह है या कह लो फ्रेश वगैरह है या अल्कोहल है वो सर्व नहीं होती। तो जो भी एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया से अरेबिक कंट्रीज़ में जाएंगे, अरेबिक कंट्रीज़ में जो भी इनकी एयरलाइंस प्ले करेगी, उनमें किसी में भी अल्कोहल जो है वो सर्व नहीं होगा। अदरवाइज जितनी भी एयरप्लेन्स हैं उन सब में अल्कोहल सर्व होता है, लेकिन उन एयरलाइंस में सर्व नहीं होता। तो उनको क्या है यहाँ पर कि उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना ज़रूरी है। देन रेलेवेंस ऑफ कलर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, हर एक कंट्री में अपना अपना एक रंग का महत्व है। ग्रीन कलर जो है मुस्लिम्स का फेवरेट है, वेडिंग में भी, ठीक है, जो उनकी दरगाह है वहाँ पे भी। लेकिन मलेशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे ग्रीन कलर को अच्छा नहीं माना जाता। वो कहते हैं अगर किसी ने ग्रीन कलर पहना है तो एक मायूसी का एक निशान है, दैट इज़ अ इलनेस, ठीक है, विद द इलनेस इन मलेशिया। सेम वे एक कलर है वाइट, ठीक है। वाइट बेसिकली इंडिया में भी अगर हम देखें अगर किसी ने वाइट पहना हो तो हम उससे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ हो गया है, क्योंकि वाइट जो है वो शोक का प्रतीक होता है। लेकिन जैसे कि अगर किसी लेडी ने वाइट पहना तो हम सोच लेते हैं कि हाँ इसका साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वाइट को बहुत अच्छा माना जाता है।
इंडिया जैसी कंट्री में अगर एक लेडी ने वाइट साड़ी पहनी है, इट मीन्स कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। लेकिन अगर मैं बाहर के कंट्रीज़ की बात करूँ, क्रिश्चियंस की बात करूँ, तो वाइट जो है वो वेडिंग पे पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि वो एक अच्छा कलर है, एक प्रीसियस कलर है और हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो इस तरह से कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आने वाले टाइम के साथ अपने आप कोप किया। अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे कंपनी का लिया है, हु गॉट द बेनिफिट ड्यू टू सोशल इन्वायरमेंट। मैकडॉनल्ड्स के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, आप लोग जाते भी हो। मैकडॉनल्ड्स एक कंट्री है, कंपनी है जो कंट्री टू कंट्री में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। बाहर की कंट्री में अगर देखोगे, दे यूज टू सेल एवरी काइंड ऑफ फूड। एवरी काइंड ऑफ फूड में अब मैं अगर फ्लैश की बात करूँ, मीट की बात करूँ, हालांकि हम लोग इंडिया में भी मीट खाते हैं, चिकन आलू टिक्की जो बच्चे का आपका बर्गर है उसमें आपके पास चिकन वगैरह आती है, लेकिन बीफ नहीं आती है। ठीक है, बाहर के अगर देश में चेक करें तो मैकडॉनल्ड्स में बीफ भी बिकता है। नाउ व्हाट स्ट्रैटेजी दे ऑप्टेड, क्या उनको इंडिया में ऐसा लगा कि उनकी मार्केट बढ़ जाएगी? सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि इन्होंने जब इंडिया में एंटर करा तो उन्होंने एक डेमोग्राफिक जो मार्केट है उसको देखा कि किस हिसाब से कौन से सेगमेंट को हम लोग को चूज़ कर सकते हैं। दे मेड देयर फूड अकॉर्डिंग टू रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में वेजिटेरियंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, तो दे स्टार्टेड देयर चेन विद वेजिटेबल्स। जो वेजिटेरियंस हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपनी जो चेन थी वो स्टार्ट करी थी। ठीक है, उसके बाद जब देखा कि हाँ लोग नॉन वेज भी कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग नॉन वेज पर आए। देन दे एजुकेट द पीपल अबाउट देयर फूड रेदर देन इंडियन ट्रेडिशनल फूड। ठीक है, कुछ नई चीज़ लेके आनी। बर्गर्स पहले इतने ज़्यादा नहीं मशहूर थे, लेकिन अब बर्गर ज़्यादा मशहूर है, पीपल यूज टू ईट इट। हम लोग मॉल्स में जाते हैं, जब हमें मैकडॉनल्ड्स दिखता है हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, बिकॉज वी लाइक इट। तो दे गिव द अवेयरनेस टू पीपल कि सिर्फ दाल रोटी ही अच्छी नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट फास्ट फूड इज ऑल्सो अ गुड, सो दैट द इंडियंस पीपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज विच बेनिफिट टू द मैकडॉनल्ड्स। अब इनका मेन यहाँ पे क्या था कि लोगों को अवेयर करना उनकी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेन चीज़ देखी कि किस हिसाब से किस एरिया में वो प्रेफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, रूरल एरियाज़ में वो लोग नहीं प्रेफर कर सकते, बिकॉज वहाँ पे अवेयरनेस करने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अर्बन एरियाज ऐसी एरिया है जहाँ पे लोगों को एजुकेशन देने के बाद या अवेयरनेस करने के बाद उनकी जो चेन है वो बढ़ सकती है। और ऐसा हुआ आज के टाइम में हम देखें तो अगर हमें मैकडॉनल्ड्स कहीं पे भी मिल जाता है, सबसे पहले बच्चे जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अब यंगस्टर्स तो छोड़ो, जितने भी एडल्ट्स हैं वो लोग भी वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट ऐसा था जहाँ पे हर कोई बैठकर खाना खा सकता है, हर कोई बैठकर जो मील है उसको एंजॉय कर सकता है। बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशली हैप्पी मील बनाया। वो इसलिए था ताकि जो बच्चे होते हैं वो अट्रैक्टेड टॉयज़ को लेकर, तो दे पुट अ टॉय इन दैट, दे मेड अ मील इन सच अ वे कि बच्चे जो हैं अट्रैक्ट होंगे और वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे अपने फ्रेंड्स कि हाँ हमें उसी जगह पर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैकडॉनल्ड्स ने अपने मद्देनज़र रखकर इंडिया में एंटर करा, और आज हम देखते हैं कि इंडिया में उनकी चेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। देन दे ऑलवेज बिलीव इन स्टैंडर्ड एंड ग्लैमर, दे कैन फुलफिल द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड में क्या है, बहुत लोग होते हैं जो माइंड में एक स्टेटस लेके बैठते हैं कि नहीं वो जगह कितनी अच्छी है, ये जगह कितनी बुरी है, क्या उसमें इन्वायरमेंट है, प्लीजेंट म्यूजिक चल रहा है, लाइटनिंग कैसी है, ठीक है, क्या उनके स्टैंडर्ड के साथ वो मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो दे मेड अ स्टैंडर्ड according to the needs of society. Then the food which are there providing is also affordable. जब मैक्का आलू टिक्की इंडिया में पहली बार लॉन्च होता, आई गेस इट वाज ऑफ 25 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, अब 25 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है आई गेस। ठीक है, एवरी मिडिल मैन फैमिली और मिडिल क्लास फैमिलीज दे कैन अफोर्ड द 25 रुपीज़। चलो अब मैं मानती हूँ कि इन्फ्लेशन के साथ साथ रेट बढ़ जाते हैं, नाउ इट कॉस्ट ₹40 around after the taxation and all that, but still 40 is not that much कि एक बंदा जो है वो अफोर्ड ना कर सके। बच्चों के लिए अगर मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट की बात करूँ, दे यूज टू पार्टी देयर, क्योंकि उनको वो अफोर्डेबल लगता है कि हाँ उनके बजट में है, दे कैन गो टू अ गुड प्लेस, उनके लिए वो अच्छी जगह लगती है, उनके लिए वो रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, थोड़ा उनके स्टैंड को भी मैच करता है और उनके बजट में भी होता है। So McDonald's use eco-friendly culture environment in their restaurant which give them benefit in social environment in India. So McDonald's use new technology to make their food for cleaning to be due to which social environment effect which may give benefit. अब अगर आप देखेंगे कई बार ऐसी स्कीम्स आती हैं, डिस्काउंट स्कीम्स भी आ जाती हैं जहाँ पर हम लोग
नोटिस करते हैं कि बाय 1 गेट 1 और बाय 2 गेट कोक फ्री, और कोड्स आते हैं जहाँ पे अगर आप इतना परचेज करेंगे तो इतना आपको फ्री मिलेगा, या होम डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी, टेक अवे में आपको फ्री मिलेगा, कूपन्स मिल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। Then they always influence whole family to have food in their restaurant. Obviously, I had taken this point earlier also कि ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई जाना पसंद करता है। No one will oppose to go in these restaurants. So due to this, McDonald's is one of the most demanding restaurant in the society. अगर मैं यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करूँ तो इलांटे में भी मैकडोनल्ड है भी। अगर आप वहाँ पे जाके कभी देखेंगे तो इतना रश रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो आपकी सारी नीड्स को पूरी करता है। हमारी नीड्स क्या है? सबसे पहली बात आती है कि हमारे बजट में होना चाहिए। येस, मैकडोनल्ड्स फुलफिलिंग दैट। ठीक है, एरिया कैसा है, अंदर की डेकोरेशन कैसी है, अंदर के एनवायरनमेंट प्लीजिंग होना चाहिए, फैमिली के हिसाब से होना चाहिए, बहुत वल्गर नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये कंपनी ऐसी है जो हर एक चीज़ को कैटर कर रही है और सारे एस्पेक्ट्स जो हैं सोसाइटी के वो फुलफिल करती है। यही रीज़न है कि ये आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल चेन है इंडिया में। सो इन लास्ट आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट there are a lot of factors which may affect your business. It may be your customs, traditions, culture, lifestyle, attitude of people, space, saving and spending, then size of population, profiles, occupation structure, trade unions, and a lot of factors. There are many factors which may affect the business strategies, business in India, survival of India. So in the last, I just want to say that if you want to be an entrepreneur, if you want to start a business in coming era, you need to study all these factors in deep, because हम सोसाइटी से जुड़े हैं। सोसाइटी हमसे नहीं जुड़ती, हम सोसाइटी से जुड़ते हैं। सोसाइटी एक रिसोर्स है जिनके हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सोसाइटी में लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उन सबको हमें देखना पड़ता है एट लास्ट टू सर्वाइव इन अ बिज़नेस एंड टू हैव अ प्रॉफिट मोटिव, ताकि आने वाले टाइम पे आपका जो बिज़नेस है वो नीचे ना गिरे, वो ऊपर ही चले। थैंक यू।